راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا بھائی عادل مشتاق۔ آپ سبھی کو میری جانب سے اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت اور سلامتی سے ہوں گے، اور دعا ہے راہ زندگی کی پوری ٹیم کی کہ خدا تعالیٰ آپ سب کو محفوظ اور سلامت رکھے، آپ سدا مسکراتے اور شاد رہیں، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج ایک بڑا دلچسپ شعر میرے ذہن میں گونج رہا ہے جس نے بہت کچھ مجھے بھی سکھایا، اور میرا دل تھا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، واسطے پڑھتے ہیں تو کردار کھلتے ہیں، واسطے پڑھتے ہیں تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو بڑے لوگ پارسا لگتے ہیں۔ تو سامعین، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا بڑا لمبا ایک عرصہ گزرتا ہے، بڑا ایک تعلق رہتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہمارا واسطہ ان سے اس طور پر نہیں پڑتا، لیکن جب پڑتا ہے تو پھر ہم کئی لوگوں سے یہ بات سن پاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم خود یہ بات، آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہوگی، یار میں اسے ایسا سمجھتا یا سمجھتی نہیں تھی، لیکن وہ ایسا نکلا، مجھے بعد میں پتا چلا اور اس نے مجھے ایسا دھوکہ دیا۔ یا کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن پتا چلتا ہے کہ ان کے کردار میں کڑواہٹ تو موجود ضرور ہے، لیکن وہ ہماری بہتری چاہتے ہیں۔ تو سامعین، آج میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی چھٹی حس کو ضرور اس معاملے میں تھوڑا ایکٹیو رکھنا ہے، تاکہ ہم بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، اور جہاں جہاں پر ہم کام کاج کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، زندگی بسر کر سکیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کا۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندے کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب، اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند، میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ سن رہے تھے ہم خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے تلاوت، اور واقعی خدا تعالیٰ کی ذات ہماری آواز سنتی ہے اور ہمیں جواب بھی دیتی ہے، کیونکہ جب ہم سچے دل سے پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم ہمیشہ اسی پر تکیہ کریں اور اسی کے حضور اپنی ہر مشکل کو، اپنی ہر پریشانی کو سب سے پہلے پیش کریں، جو ہمارا بہترین مددگار ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جو آپ اتنا اچھا فیڈ بیک ہمیں دیتے ہیں اور اتنی محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رابطہ کرتے ہیں۔ تو ضرور آپ نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ بڑا آسان سا ہمارا ایڈریس ہے، پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان، اور فون کال SMS کے لیے اور واٹس ایپ کے لیے ایک ہی نمبر ہے جناب، غور سے سن لیجئے کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ زیادہ تر اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ 0316747655 اور ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور ہمارا یوٹیوب
चैनल हुआ करता है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। आप जनाब इस आईडी पर प्रोग्राम्स को सुनिए, हमारे YouTube चैनल को जरूर आप जनाब सर्च करें, आप इसके प्रोग्राम्स को सुने, इस पर कमेंट्स करें, इनको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो अभी जनाब आपके प्यार भरे खतूत को मैं शामिल करना चाहूंगा। बहुत ही प्यारा और बड़ी मोहब्बत भरा खत मेरे पास मौजूद है। आप हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल हमीद मजरू, बहुत ही हमारे मोतबर बड़े अच्छे हमारे सामे हैं, और आप हैं जी प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स जिला अटक से आपका ताल्लुक है। और जनाब आप लिखते हैं कि उम्मीद है पूरी टीम ठीक ठाक और खुशो खुरम होगी। जी जनाब दुआएं आपकी, और कहते हैं कि आपकी नशरियात का मुस्तकिल सामे हूँ, बहुत नवाजिश आपकी। कहते हैं कि कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जो मैं ना सुनूं। जनाब आपकी बेहद हम तारीफ करते हैं इस बात पर, बहुत अच्छा लगता है हमें कि आप हमारे बाकायदा लिसनर हैं। आपने कहा कि नशरियात बहुत शौक से सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं, स्ट्राइकी ड्रामा बहुत अच्छा है, और कहते हैं कि आपके सभी प्रोग्राम बहुत आला होते हैं। आज सिर्फ इतना लिखता हूँ, बाकी अगले शुमारे में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे भाई हैं जी अदरीस यूनस, आपका खत जनाब इंग्लिश में मेरे पास पहुंचा है। इंचार्ज प्रोग्राम राह जिंदगी, सलाम टू एवरीवन इन जीसस नेम। प्रोग्राम वाज लिसन्ड इन द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ ब्रदर आदिल मुश्ताक। ग्रेट सेइंग मेन, मैंने देखे हैं दिल में जहर रखते शहद उगलते लोग। ये शेर आपको पसंद आया, और इसी के साथ साथ आपने दीगर सिलसिलों को भी पसंद किया, और बहुत प्यारी तहरीर आपने जनाब जिसमें आपने तज़किरा किया है स्ट्राइकी ड्रामे का, और ट्रैक आपको बहुत अच्छा लगा, और आपको जो है वो बड़ी सारी मालूमात बड़ी इंप्रेसिव लगी, इंस्पिरेशनल लगी, और आपने कहा है कि आप सबको मेरी तरफ से दुआएं और आपने सबके लिए बरकत चाहिए है। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई अदरीस। और अगला खत मेरे पास मौजूद है अमजद खान, हकीम सदीक माखा, नियाज अहमद, साजिद खान, आयशा खान, हसनैन अली, अलीना खान और गोगी खान। आपने कहा प्रोग्राम राह जिंदगी, जनाब आदिल मुश्ताक साहब आदाब। तो मेरी जानिब से भी आप सबको आदाब। आपने कहा कि प्रोग्राम का आगाज बड़ी अच्छी दुआ के साथ और बड़ी अच्छी बात के साथ किया गया, और आपने जनाब पसंद किया, और इसी के साथ आपने कहा कि प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बहुत अच्छे हैं, बहुत खूब हैं, और दोस्तों के खतूत आपको बहुत पसंद आते हैं। कुछ दोस्तों का आपने तज़किरा किया है, मासूम हाजी, फातिमा गुड़िया, हाफिज नईम अहमद, असद मुराद, इरशादुल हसन जाफरी, मास्टर महबूब अहमद, अमजद खान और दीगर तमाम दोस्तों में आपने आमिर जमील, अली रजा और रेहान मुस्तफा का जिक्र किया है। आपको तमाम दोस्तों के खतूत पसंद आए और सारा आपको प्रोग्राम पसंद आया। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आप सभी की इस मोहब्बत का। बहावल नगर से आपका ताल्लुक था। शफाकत बाजवा, चुविंडा सियालकोट से आपका ताल्लुक है। आपने कहा कि राह जिंदगी प्रोग्राम जोशुआ भाई की जुबानी सुना तो बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में आपके मैसेज, आपके खत और सिलसिला हादसात से बचाओ और बहुत सारे सिलसिले बाकी सब सुनने में जनाब बहुत अच्छा लगा, और प्रोग्राम सुनने का बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया जनाब शफाकत भाई आपकी मोहब्बत का। अली रजा और वकास अहमद, आपका ताल्लुक भी बहावल नगर से है। आपने भी प्रोग्राम को सुना, पसंद किया और तमाम सिलसिलों को पसंद किया, खतूत को पसंद किया। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी नवाजिश। और जनाब अभी हम आगे बढ़ेंगे। इस सिलसिले को दिल तो नहीं चाहता मेरा समेटूं, लेकिन आपको पता है कि वक्त की कैद में है तो हमें फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो अभी हम आपके लिए चलेंगे आपके बड़े मनपसंद सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर मेरी मुराद है स्ट्राइकी ड्रामे से। आइए मिलकर सुनते हैं। ताजू यार, वो तू एदा पेतला हावे तक कहना एक चीर क्या आ गए। हुण तू टुरन फिरन तू भी आ जे यार, एना वड्डा फट नजर नहीं आता तेको। ये चीर है, एक तो सही पीप पै गई है। और भाई साहब, ये पानी भी ज्यादा कोई नहीं पीना। वाल भी पता नहीं बार बार इना को पेशाब क्यों आवे, समझ नहीं आती है गाल। बरजाई हाँ हालात चा दो। अच्छा, मैं इन्हें अंगूठे ते पट्टी बधे ना आराम ते नाल घिनवे ना। वो एक तो पिया पिया इतना बीमार थी वे थी। हाँ हाँ ये करो। और नूरमंद मेरे पैर च जबरदस्त चिचला पिया थी दे।
ताजू खां जवान बन यार यार। ओए तू तो रोज 10 मील पैदल टुरदा है ओ यार मेरे कनु हुण नहीं टुरिया वेंदा हकीम शबीर कनु मलम की दियम आराम ही नहीं आया हुण तां इतना तराटा उठदियां पिन दिला दे बाका मारा मेरा मसाना बहुत कमजोर है रोज ठंडाई पीना हकीम साहब आखे जो मसाने दी गर्मी है हाय अल्लाह ए चंगे भले ता हन भाईजान ते ए क्या थी गई ना को सारा पैर सुज गए कुछ नहीं भाभी तुसा परेशान न थी वो किवें परेशान न थिया पैर दी हालत देखो क्या थी पई है साहिद जल्दी कर टकोर तैयार कर ते मैं डॉक्टर को सरेना डॉक्टर को केड़ी शायद पता है ए बाबे औरा को हुने सडवा घिंदे ए तुसा भाईजान ए गिनो ए गोलियां खाओ ते मैं सोज लहा वाला ली दवा चाहती आवा बस भाभी कहीं दवाई दी लोड़ क्या नहीं पर ए मैं को दसाओ जो ताकू थिया क्या है ए चंगे भले तो टुरे आवे तुसा बस डाले तो लहन लगे लाले दा पैर मुड़िया गए उंदे बाद ए हाल थी गए ए ता सीधी सीधी मौत हई अम्मा मोह कढेंदिए लोग सिर कछावण ओलड़ा बनावण अते मोह कढवावण अम्मा कोल अपने बाल ते जाली घेना दे होंदे न चल साहिदा तैयारी कर असा ताजू को घेन के ते हस्पताल जुलदे हैं बस और यार तुसा रहो इथा फलक शेर समझदार है मैं उदे नाल चलिया वैसा ओए असा तेरे नाल वेसू ते भरजाई को घरों गिंदे ते सीधे हस्पताल है बस मैं हुणे तैयार थी के आई हाँ। 2 मिनट है बस ये देखो मेरा मल्ला ठीक थी ना वेंदे शुक्र अल्लाह ने सेहत दे दी शुक्र है शुक्र मौला दा और को डॉक्टर साहब आ गए जी हाँ डॉक्टर साहब हाँ भी ताजू भाई मेरे को एक गाल दी समझ नहीं आती जो तुसा व्यापारी लोग हो पढ़े लिखे अकलमंद पर एक गफलत क्यों करेंगे हो डॉक्टर साहब असा गफलत तो असलू कहने की से कई हकीमा को दवायां गिदन कई मलम इस्तेमाल कितन पर आराम ही ना आंदा सही डॉक्टर साहब तुसा क्या इलाज कीते ताजू दे पैर दा जख्म ही ठीक थी ना आंदे नूरबंद ताजू खां को शुगर है ते जेड़ वेले तक शुगर कंट्रोल न थी वे शुगर दे मरीज दा जख्म ठीक नहीं थिंदा हुण तां सही मेरा लाजे लाजे टुरन फिरन वाला चच्चर ही नहीं रिया सही अच्छा 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 शुगर दे मरीज दी एक एवी अलामत है जो मरीज को पेशाब बहुत ज्यादा आंदे पर डॉक्टर साहब तुसा तो ढेर सारे चीजा खावन तो इना को मना कर दीते देसी घी ते शक्कर वाला पराठा ते इना को डाढा चंगा लगदे हुण किवें काजन वाल तुसा इना दी बीवी हो ना हां हां बीवी ये चीजा तो शुगर पैदा करेन जी समझ हाय हाय डॉक्टर साहब ये दसो जो ये जख्म ठीक तो थी वैसी हाँ हाँ जे तुसा खुराक दा ख्याल रखीसो अते बाकायदगी नाल शुगर टेस्ट करवेंदे रहो तो ये जख्म बिल्कुल ठीक थी बस बस डॉक्टर साहब गिजा दा ख्याल तो मैं रखे सा तुसा दी परवाह ना करो मजा ले जोन खावणे घी वाला पराठा वेरी गुड ताजू खान शुक्र करो तुसा टाइम सिर पहुंच गए हो अस्पताल अगर देर थी वेंदी ना तो तोरा पैर कपड़ा पोवे हाय हाय अल्लाह शुक्र है मौला दा हुण मैं सही जाते हैं जी तो सामीन इसमें तो कोई शक नहीं है कि कहते हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान और नीम मुल्ला खतराए ईमान इसलिए जब भी हमारी सेहत के मसाइल हों या हमारे कोई ऐसे मसाइल हों जो हमारी बातनी सेहत के साथ ताल्लुक रखते हों तो हमें उस शख्स या उस इदारे के पास जाना चाहिए जो हमारी बेहतरीन तौर पर मदद कर सके और हमारी उस बीमारी की तशखीस भी करे और उसका इलाज भी करे। जनाब आज हम बात कर रहे थे कि हमें लोगों के साथ जब मेल मिलाप करते हैं तो कई दफा लोग हमारी बड़ी खुशामद करते हैं, कई दफा लोग हमारी इतनी तारीफ कर देते हैं कि हम समझ बैठते हैं कि सब कुछ यही है और ये तो जनाब इनसे ज्यादा तो हमें कोई प्यार नहीं करता। लेकिन कई दफा लोग अपने जो नापाक अजाइम को पूरा करने के लिए हमारे नौजवान नस्ल के जो लोग हैं उनको कई दफा ट्रैप में फंदे में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो बातों
की हद तक तो वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके जो पसे पर्दा जो उनके अज़ाइम होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगा नौजवान भाइयों को, बहनों को, कि वो इस मामले में बहुत ज्यादा मोहतात रहें। आइए जनाब, अभी जिंदगी के तजर्बात से हम सीखते हैं। तो आप बीती हमारा सिलसिला है जिसमें आज हम आप बीती से सीखेंगे और जानेंगे कि इस तजर्बे से हम क्या बात आज अपने लिए अमली तौर पर लेंगे। मेरा नाम अमजद परवेज है और मेरा ताल्लुक कमालपुर से है, गांव से, और फैसलाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे है। मुझे आज से 35 साल पहले एक बात याद आती है, एक वाकया मेरी जिंदगी में नूरमा हुआ। बेशक ये सिंपल बात है, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। जब कभी भी इसको याद करता हूं तो मैं अपने दोस्तों में भी इस बात को शेयर करने की कोशिश करता हूं कि मेरे दोस्त थे डॉक्टर जवेद इकबाल जीमा साहब। उनकी वालदा काफी बीमार हो गई और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इसको इस तरह इनकी मेडिसिन देनी है और इनकी इन चीजों का ख्याल रखना है। बिलखसूस जो मैं बात कहने वाला हूँ, डॉक्टर साहब ने ये बताया कि इसको मीठी अशिया नहीं देनी, और फ्रूट में से उन्होंने कहा कि आजकल अंगूरों का सीजन है, बिल्कुल अंगूर नहीं इन्हें देने, क्योंकि उनके गले में कुछ तरह का मसला था जिससे उनको शदीद किस्म की एलर्जी थी। तो एक दिन उनकी वालदा ने कहा कि अंगूर खाने को मेरा दिल कर रहा है। मेरे दोस्त डॉक्टर जवेद साहब ने मुझे साथ लिया और हम मोटर बाइक पे बैठ के हम दारुल अहसान चले गए। वहां से हमें अंगूर नहीं मिले और फिर हम चक जुमरा आए, लेकिन उसके बाद हमें फैसलाबाद आना पड़ा। वहां से अंगूर खरीदे और फिर हम वापस गाँव चले गए। और डॉक्टर साहब ने जब अंगूर लिए तो उन्हें साफ करके अपनी वालदा के पास ले गया, और जब उसने अपनी वालदा के सामने पेश किए तो उसके खाने से पहले उसने अपनी वालदा से कहा कि माँ जी, ये अंगूर आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि आपने इनको नहीं खाना, क्योंकि ये आपके लिए एलर्जी और आपके गले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसकी वालदा ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं खाती। अपने बेटे से कहा कि क्यों आपने इतना सुबह से जब आप गए हैं इतना वक्त ज़ाया किया, दूर गए हैं, लेके आए हैं, और यहाँ ही क्यों नहीं आपने मुझे बता दिया कि ये आपके लिए अच्छे नहीं है, तो आप घर में रहते, आराम करते। उसने कहा कि नहीं, अगर मैं उस वक्त अम्मा जी ये कहता कि ये आपके लिए अच्छे नहीं है, तो आपके दिल में ये बात आनी थी कि हो सकता है कि ये लाने के लिए या इतनी तगोदो करने के लिए मुझसे बहाने बना रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले मुझे लाने चाहिए, फिर मैं अपनी माँ से दरखास्त करूंगा कि ये आपके लिए अच्छे नहीं है। लेकिन जो कुछ मुझे करना है वो मैंने कर दिया है, लेकिन अभी आपका फैसला है। चूंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप ना खाएं। तो मैं ये एक सिंपल सी इस कहानी से ये सीखता हूँ कि जब कभी भी हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हमसे कोई तकाजा करते हैं तो हमें बहाने नहीं बनाने, बल्कि इख्तराम के साथ, इज्जत के साथ उनकी खिदमत के लिए हमें आगे बढ़ना है। और इसके बाद ही हम कोई उन्हें मशवरा भी दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जो काम, जो हुक्म हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन कहते हैं, उसको अमली तौर पर करना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जी तो सामिन, बहुत ही खूबसूरत बीती। माँ से मोहब्बत, क्या बात है जनाब। माँ एक रिश्ता ऐसा है जिसके साथ हमारी जो एसोसिएशन है, हमारा जो ताल्लुक है, वैसे तो माँ बाप दोनों ही बहुत अहम है, लेकिन चूंकि आज माँ के ताल्लुक से बात की गई तो माँ बड़ी सैक्रिफिशियल जो है वो होती है, यानी बड़ी कुर्बानी देने वाली ये मोहब्बत होती है। तो हमेशा हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, और खसूसन जब वो बुढ़ापे में आ जाएं तो तब उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आइए प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, और इससे पहले हम दुआ करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और अब ताला के हुजूर झुकते हैं। ऐ रब्बे करीम, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज सारे वक्त के लिए जिसमें हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके, और हमने आज बातचीत की, हमें मौका मिला। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, और तमाम सामाईन के लिए मैं और राह जिंदगी की पूरी टीम के लिए सलामती और बरकत की दुआ करता हूं। और इसी तौर पर मैं अपने वतन अजीज
ملک پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اسے ہر طرح سے استحکام اور سلامتی عطا کیجیے. دہشت گردی اور دیگر تمام ایسے جو عزائم ہیں، منصوبے ہیں، وہ کینسل ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور یہ ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.